What is the importance of training in a soldier's life? ट्रेनिंग में वो हर एक पहलू कवर करते हैं जो आपको लेटर ऑन फौजी बन के काम आएगा। What exactly is the Indian Armed Forces? मैम, इंडियन आर्मी इज़ अ वे ऑफ लाइफ, हम ऐसा क्यों कहते हैं उसका एक कारण है। So I would like you to tell us a little about the mention in dispatch award per se. So what is the mention dispatch? That your name was mentioned in the dispatch, that is the official record. The chief of the army staff has mentioned your name in a dispatch in which you are found doing a act meritorious enough, gallant enough to be mentioned in the dispatch. How would you define courage as the leader of the Indian Army? Courage is the absence of fear. Okay, dictionary wise ठीक है मैम. But then I'll give you by my experience. Please. We are those lucky soldiers who are alive, and we are reaping the benefits of those soldiers who have laid down their lives. So true. So we were lucky. So कि उसकी those bullets were not meant for us. Because ये सब चीज़ें generally आम जनता movies में देखती है. Like Uri आई थी, that showed I think the closest कि Uri was a good movie. Uri was a good movie and it was and वो based वहीं की थी, North East का ही उन्होंने उसमें दिखाया था and it was तो hearing it first hand, you know, कि exactly उसी type का कुछ मंजर आपने जो देखा and उसको experience किया and like you said, luck played a very important role. So that means luck does have. Soldier has to be lucky, ma'am. Field Marshal Sam Manekshaw ने एक बार कहा था कि if a man says he does not have fear of anything, so either he's lying or perhaps he's a Gorkha. So I'm sure you've guessed it right. I'm sitting with a soldier of 5 GR Regiment. Today I'm sitting with Lieutenant Colonel Swatantra, who has been conferred upon the mention in dispatch for an operation जिसके बारे में वो हमें खुद बताएंगे. Colonel Swatantra, thank you so much for joining us today in our studio and being a part of this discussion. I welcome you to She Slays. Thank you, ma'am. I am Lieutenant Colonel Swatantra Singh Kashyap. जैसा कि आपने बताया, मैं 5 गोरखा राइफल्स से आता हूँ और मेरी पेरेंट यूनिट है 2nd बटालियन दी 5th गोरखा राइफल्स. Colonel Swatantra, I would like to go back a little to your childhood days and आपके बचपन में मैं जाना चाहूँगी. And आप सैनिक स्कूल घोड़ाताल के alumni हैं. Yes. And from there you joined the NDA. So it's an amazing journey that you have traveled. So yes. Let's talk a little about your childhood and onwards. Okay. मेरा बचपन शुरुआत हुआ है I belong to UP. Yeah. So मेरे बचपन की शुरुआत सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से है. Okay. एंड मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से. सो आई बिलीव नाउअडेज मिर्ज़ापुर इज अ फेमस नेम. उसके नाम पे एक सीरीज भी आई हुई है. हाँ, उसके नाम पे सीरीज है. सो आई एक्चुअली स्टार्टेड, आई बिलोंग टू मिर्ज़ापुर एंड वी हैड समहाउ सेटल्ड इन सोनभद्र फॉर सम टाइम. एंड सोनभद्र बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा. अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बिकॉज इट्स अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट एंड नॉट सो वेरी important type as compared to the other big cities. Small township है. And so Sonbhadra district came out because of NTPC being there, National Thermal Power Corporation. Okay. So वहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की नर्सरी LKG and all St. Joseph School से. And the interesting fact is that Sonbhadra and Mirzapur are non-military stations. Right. So nobody knows about Fauj. And now I am talking about back in, let's say, 92, 93, because I'm 86 born, so 92, 93. Right. So that time, internet was not very common thing. People knew army is there, but then people didn't know how to get into it. Right. It being a non-military station. हम किसी स्टेशन में रहते हैं जहाँ हम फौज को देखते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं, वर्दी देखते हैं और हम काफ़ी फैसिनेटेड होते हैं उसको देखकर. Correct. वहाँ से ये मेरे पिताजी की जिद थी या उनकी पसंद थी कि मेरा बेटा फौज में जाए. ओके. तो हमने कहीं सुना सैनिक स्कूल नाम की कोई चीज़ होती है. एक्चुअली नहीं मालूम था. हमें ये भी नहीं मालूम था कि सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कैसे करना है. अच्छा. हाँ. okay. अभी तो क्या है, आज ऑनलाइन इंटरनेट है. हाँ. आप इंटरनेट पे चेक कर दीजिए, हाउ टू अप्लाई फॉर इट, गूगल करिए, सारे आ जाएंगे. तो उस समय मैंने मेरे फादर ने कुछ पता किया सैनिक स्कूल में एंट्री कैसे होती है और उन्होंने एक आई रिमेंबर इट वेरी क्लियरली
10 रुपए का फॉर्म, मनी ऑर्डर, 10 रुपए का मनी उस ऑर्डर, दौरान मनी ऑर्डर होता था, राइट? 10 रुपए का मनी ऑर्डर correct, किया हाँ। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के पते पर, बट वहां से जवाब आ गया कि सॉरी यू आर लेट, Okay. अभी एडमिशन प्रोसेस बंद हो गया है, अच्छा। you cannot because you have to sit for an all India exam, all India Which Spanish. grade were you in that time? Ma'am, I was in class 5th, Fifth. so that would be around 10 years, Oh wow. around 10 years of Yeah, age. 10 years, absolutely. So उधर से जवाब आया कि अभी आप लेट हो चुके हैं, so इस साल आप अप्लाई नहीं कर सकते, Okay. and they had very clearly written कि probably you should not apply right now because you'll lose an age, lose a class or lose a year if you apply next year. Okay. Because वो अच्छा। चीजें भी उसमें लिख के हाँ, आई, हाँ, of course. एक Okay. जवाब आया. हाँ। Then we kept on pursuing it. Then we found out from other bookshops that there is a book for preparation also. वहाँ से एक सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की बुक निकाली, Okay. उससे पढ़ाई किया, and again we tried after 3 years. Now class 9th. I see. Okay. और सारी तैयारी मेरे फादर ने कराई और पढ़ाई किया, फिर जाके एग्जाम दिया, and it is still now continuing from that time. It's a all India Science School exam wherein you have to enter, Correct. give your exam, and then merit list come depending on the domicile of a state. Like I belong to UP, so I was उसके the हिसाब से आपको first priority हाँ, for correct. घोड़ाखाल, हाँ, and then depending on the merit list you are selected for that. So that is a journey, that is the motivation which took me to Sainik School. wow. बट यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको लाऊंगा मैम, Please, of course. हाँ. जहाँ से मैं आता हूँ. आई मीन जो भी मैंने बताया, सेंट जोसेफ स्कूल शक्तिनगर वेयर आई स्टार्टेड, सोनभद्र, वहाँ पे लोग इंजीनियर, डॉक्टर, वकील सब जानते हैं कि मुझे बड़े होके ये बनना है, Okay. पुलिस, बट फौज के बारे में कोई नहीं जानता. कोई नहीं जानता. एंड मुझे क्या पता चला और मेरे दिमाग में आज तक क्या है, मेरे से शायद 3-4 साल सीनियर बैच में उस स्कूल में कोई एक स्टूडेंट थी, लेडी गर्ल स्टूडेंट, तो हमेशा उनके बारे में बात किया जाता था कि शी जॉइंड आर्मी एंड प्रोबेबली शी वाज वन ऑफ द पायनियर बैचेस, बहुत पहले, आई मीन फ्रॉम द सेम सैनिक स्कूल, एंड उनका नाम बड़े रिस्पेक्ट से लिया जाता था बिकॉज बाकी सारे प्रोफेशनल्स, you remember her name? मैम आई डोंट रिमेंबर No problem. बिकॉज दैट Okay. वाज आई वाज इन क्लास 4th 5th. Okay. But then might be she must be more senior to me, 7-8 years senior to me, Sure. because 11th 12th class. Okay. So that she has joined. But that was the motivation कि अच्छा मैम आर्मी में गई हैं, लोग उनको जानते हैं. Okay. So probably when I join army, people will remember me. Now it will be a mission to find out कि वो कौन है. हाँ. Okay. Probably she would be in the army or she would have I'm left. sure. I hope because- she's listening to this. Okay. So वहाँ से फिर the thing was I joined Sainik School घोड़ाखाल. How was your journey in the सैनिक स्कूल? वहाँ पे किस तरह की एजुकेशन आपको वहाँ पे दी जाती है, which is different from a normal schooling? ऐसा क्या दिया जाता है सैनिक स्कूल में? जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो हमारा आजकल के पेरेंट्स और हमारे पेरेंट्स, मतलब आज तो हम भी पेरेंट्स हैं, करेक्ट, हमेशा हमारा एम होता है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा होना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट एम. नाउ वी आर ट्राइंग टू ग्रेजुअली गो टुवर्ड्स, नहीं वो करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स सब में अच्छा होना चाहिए. बट दिस सैनिक स्कूल्स व्हेन दे वर मेड विद अ एम एंड अ मिशन, एंड द मिशन वाज टू प्रोवाइड किड्स फॉर डिफेंस फोर्सेस. सो सैनिक स्कूल की पढ़ाई में जो खास बात है, वहाँ के जो टीचर्स हैं, दे आर द बेस्ट, एंड देयर आर टीचर्स इन द स्कूल हु आर प्रेसिडेंट अवार्डीज, सो दे आर ऑफ दैट स्टेचर. वहाँ पे पढ़ाई पे तो आपका पूरा ध्यान है ही, साथ में स्पोर्ट्स एंड फिजिक, ओवरऑल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, फिजिकल्स, डिबेट कॉम्पिटिशंस, स्विमिंग, running, talk of it, and anything, it is there, anything. And I'm talking about when I joined it. I joined it in the year 2000, so I'm talking about 25 years back. Wow. ये सारी चीजें थी. And if you see today, इन्हीं चीजों को और schools, boarding schools भी ला रहे हैं अपने में. Correct. So this was there in Sainik School. Because if you see, when we come in the army, all these things are required. Absolutely. You have to be a complete और अगर आपका ये लाइफस्टाइल बचपन से ही बन जाए तो आई थिंक इट गेट्स इजियर फॉर यू टू काइंड ऑफ अडैप्ट. करेक्ट. बिकॉज उसके बाद आप गए एनडीए. एनडीए इन इटसेल्फ इज अ, आई वुड से, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रेनिंग्स दैट वन कैन टॉक ऑफ
is National Defense Academy, जहाँ अब खैर ladies also are now allowed. बिल्कुल। We have girl cadets moving in. Hmm. So आपका NDA का जो entrance था, it's one of the toughest. You cleared Yes, it in the first go. First go, yes, ma'am. So what kind of a preparation you took for the exam for NDA? जब मैं 12th क्लास में था तो वहाँ का शेड्यूल ऐसा है स्कूल का, सैनिक स्कूल, एज आई मेंशन बिफोर. सो द मोमेंट यू एंटर क्लास 12th दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग यू फॉर द यूपीएससी एग्जाम. Entrance test की एंट्रेंस टेस्ट. तैयारी शुरू हो जाती है. Yes, because we generally come in class 12th in the month of March, April, and September you have the exam. So within 6 months you have to complete the entire syllabus of class 12th. So you are preparing for your boards. Right. That oh is my God, that's even more difficult. important as compared to your this exam, because you may miss the September exam. True. You may miss the next April exam. But then you cannot falter in the board exams. Got it. So they prepare you within the 6 months. The teachers, they are the best. Right. They prepare you. They prepare you, and September you give the exam. And our schedule is so made so that September you clear the exam. You sit for the entrance exam. December you have the, I remember it clearly, ma'am, December 2003, the results were out. And February, March, the SSB starts. Right. So the preparation, वहाँ पे तो जब क्लास 12th में आते हैं उसके बाद आपकी पढ़ाई, 12th की पढ़ाई कर रहे हो आप, और एक्स्ट्रा पढ़ाई रिटन एग्जाम के लिए भी कर रहे हो. SSB in itself, you know, is a very difficult kind of an interview that you appear for. Like हम लोग ग्रेजुएट होने के बाद वहां गए थे, so somehow you're little worldly, you know about, you know, the general information of the what's happening around. तो आपने ना ही सिर्फ फिजिकल और वो क्लियर किया, बट जो 5 दिन लगातार जो ग्रिलिंग होती है आपकी, उसकी तैयारी भी आपने करी इतने छोटे से टाइम में, while you're preparing for your 12th standard. बिल्कुल. So it must have been one hell of a challenge for those few months that जब आपने तैयारी करी होगी इस चीज की, है ना? So how was the experience at SSB as a 12th, not even 12th graduate, आपका हुआ भी नहीं था 12th pass, but you went for SSB. So how was SSB? Frankly मैं बताऊं, जब मैं SSB देने गया, तो मेरे पीछे हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में ये था कि मैं सैनिक स्कूल घोड़ा खाल का हूँ. और मेरे सीनियर्स, हमारे स्कूल के सीनियर्स, वो, मैं भी बाद में एनडीए में गया. राइट. एक लेगेसी कैरी कर रहे थे. हमारा एक मुद्दा रहता है कि अच्छा, मुझे स्कूल ने जो कुछ दिया है मैं वापस जा करके उसको दूंगा. एंड आई हैव विजिटेड माय स्कूल एन नंबर ऑफ टाइम्स, एंड एम इज टू मोटिवेट द बॉयज. तो दे टेल अस, दे काइंड ऑफ टीचर्स कि व्हाट इज टू बी लाइक एन इंडियन आर्मी ऑफिसर or a defense forces officer, not only Indian Army but a defense forces officer. Correct. So that is one thing which the school gives you. SSB की तैयारी is a ongoing process. हाँ, वो तो खैर आपका चल ही रहा होता है साथ-साथ. Correct. It's the character, it's the trait which they are actually looking into. Today I cannot tell you what they were exactly looking into, but I believe they are looking at those things. यार पूरा का पूरा जो वो आता है, सब लोग रिजेक्ट हो जाते हैं on the first day. कई बार पूरा का पूरा कोर्स ही रिजेक्ट हो जाता है. बिल्कुल मैम, मैंने 13 SSB इलाहाबाद से दिया है, सॉरी 34 SSB इलाहाबाद, एंड जिस बैच में मैंने SSB क्लियर किया, उसके जस्ट द प्रीवियस बैच, बिकॉज आफ्टर क्लियरिंग द बैच वो मेडिकल्स वगैरह चल रहा होता है जो क्लियर हो जाते हैं. So उसमें we were told that 80 candidates had reported. Okay. And just one made it. Just imagine. So we were actually afraid. Yeah. We were actually afraid कि we also reported 137 of us. अच्छा. We reported. And the result was quite opposite. 13 of us cleared. Okay. So in our mind it was there that only one had cleared in the last batch. तो ऐसा नहीं है कि हर बार ही ऐसा होता है. So it is basically what they want. If they get the thing what they want, they'll take. There. But it is not that कि बस वो selection हुआ उसके बाद you have 5 days and you have medicals and you have merit list में भी आना है. So it's a long process. It's not simple. But NDA जब आपने step in किया, it was your dream, like you said. आपको NDA जाना था और आपके father का dream था. So जब आप NDA में step in हुए, what was that feeling donning that khaki uniform of NDA at that time? So take me through that NDA phase of yours. मैम, NDA जब हम पहुँचते हैं, सो आपको कोई आता है रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन पर, एंड अभी मैं जो बताऊंगा और अभी आप जाके उसको देखेंगे थोड़ा सा चेंज हो गया है. राइट.
जब आप उनकी बस में बैठ के आप एनडीए के लिए जाते हैं, सो वहाँ पे वो फर्स्ट वे ऑफ सुडान आता है, सुडान ब्लॉक, डोम, करेक्ट, हाँ वहाँ से दिखता है, एंड देन यू फील ओह, मतलब यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बट एट द सेम टाइम यू आर नर्वस, फट रही होती है, हाँ, क्योंकि अच्छा अरे अब मैं तो सैनिक स्कूल का, मुझे मालूम है कि वहाँ क्या होता है, बिकॉज मेरे सीनियर्स मुझे बता चुके हैं 4-5 times more than what you must have experienced in सैनिक स्कूल, राइट? यस बिल्कुल मैम, सैनिक स्कूल से भी टफ है। सो जब आप वहाँ जाते हैं, वो सुडान बिल्डिंग पहली बार दिखती है, फिर आप बोलते हैं वाओ, मैं तो मतलब मुझे जहाँ आना था मैं आ चुका हूँ, बट देन साथ में डर भी लगता है, बिकॉज आप वहाँ जाते हैं, वहाँ सारे सीनियर, और फिर वो फौज का असली माहौल वहाँ शुरू होता है। करेक्ट, सैनिक स्कूल इज स्टिल फ्रेंडली, राइट, वी आर स्टूडेंट्स, नॉट एवरीबडी गोज इनटू फौज, नॉट एवरीबडी हैज दैट थिंकिंग ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, बट आर्मी इज the army what people know. Correct. So वहाँ की वो mixed feelings आती हैं. But वहाँ पे training also I think is extremely grueling. It is like they take you through. Training is grueling, man. Just achieving the physical toughness is not enough. Not enough and is not required. Correct. I will say not required. You should be mentally tough to take on anything. True. And at any stage of your life. So that is what यही आगे जाके भी आपके काम आएगा, यही काम आएगा। फिजिकल एंड्योरेंस तो एक हद तक आपको आगे ले जाएगी, बिल्कुल, बट एक टाइम के बाद until your mental endurance sets in, the physical body आपकी give up कर देती है, you know, that is when your mental physical endurance you can run 10 km 20 km 30 km 40 km, it's okay, अपने आप को पुश करना, लेकिन उस 40 km के बाद when you are in actual operations, when you go in an operation wherein you are to stay in a jungle for 7 days 10 days, when your food is over, when your all clothes are dirty wet, कीचड़ लगा हुआ है, आप मणिपुर जैसे जंगल में हैं, जहाँ पे लीच भी आपके शरीर पर लगे हुए हैं, सामने आपको मालूम है दुश्मन भी है, आप कोई हरकत नहीं कर सकते, आपकी नेचर कॉल भी है, बट सब कुछ कैसे आपका दिमाग कंट्रोल कर रहा है, that is the thing, your mental endurance comes, and that is the thing which is actually taught in NDA. Wow, because NTA, I happen to see firsthand the kind of training that happens there, whether it is about picking up your cycles and running into the आपके जो D block से ऊपर आप रन करते हैं, चाहे वो है, चाहे सिंहगढ़ में जो आप लोगों को पनिशमेंट्स वहाँ पे दी जाती हैं, but the kind of training that happens in NTA and then beyond, moving into IMA and further to your parent unit, training का क्या importance है for a soldier, so to say? What is the importance of training in a soldier's life? How does it actually, you know, help you out there when you are in the uniform? ट्रेनिंग में वो हर एक पहलू कवर करते हैं जो आपको लेटर ऑन फौजी बन के काम आएगा, एंड इट कवर्स एवरीथिंग, लाइक एनडीए में दे टीच यू एकेडमिक्स, and academics we thought it will be the 3 subjects of graduation, but it is not. It's much more. I don't know how many subjects they teach. I believe 16 to 20 subjects which they teach, right? And you may be a non-techie, but you're also studying the subjects which techie that you've never imagined about, correct. And then you have a lot of subjects, but the thing which we actually want to know is how does it help in the army. Basically they are the service subjects which are taught to you. So being an army cadet, we learn about the navigation in jungles, weapon training. So these things are the building blocks, which actually is you graduate to a bit more when you go into your IMA, because there you start learning about platoon level tactics. वहाँ पे आप एक सेक्शन लेवल टैक्टिक्स सीख रहे हैं. Of course, you graduate to a higher level of studies. बट जो ये बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी, वो एनडीए में आपको सिखाई जाती है, और वहाँ से फिर आप IMA आते हैं. IMA में थोड़ा सा और वेपन्स के बारे में, एंड इससे ज्यादा जो एक चीज वहां पढ़ाई जाती है वो है लीडरशिप. Because I was coming to that. हाँ, बिकॉज ये जो एनडीए कैडेट्स हैं, दे विल बी लीडर्स. True. They'll start from a lieutenant to a general. Right. So they are leading. Maybe they'll start from 30 men from a platoon, from a company to IC, to a brigade commander, battalion commander, and beyond. Correct. So this leadership thing, leadership skills, वो है उनमें ऑलरेडी, वो एसएसबी ने चेक किया हुआ है. करेक्ट. बट देन इट इज एक्चुअली टॉट एंड टेस्टेड, एंड व्हाट इज अ ब्लैक डेमो एंड व्हाट इज अ वाइट डेमो, इट इज एक्चुअली शोड देयर. वहाँ दिखाया जाता है. एक्सप्लेन करिए फॉर द ऑडियंस. पहली बात तो ये ब्लैक डेमो क्या होता है और वाइट डेमो क्या होता है. दे वुड नॉट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. लेट्स से आपको कोई काम करना है. मैं ऐसे कुछ एग्जांपल देता हूँ जो आम सभी के लिए होता है. करेक्ट.
हम देखते हैं रेड सिग्नल हुआ है, हम रोड पे जा रहे हैं, रेड सिग्नल हुआ, गाड़ियां रुक जाती हैं और अपने आप रुक जाती हैं, और जैसे ही वो येलो ग्रीन हुआ फिर सब आगे बढ़ जाते हैं। बट क्या हम रात के 11 बजे जब वो रेड सिग्नल हो रहा है, क्या मैं अपनी गाड़ी वहां रोकता हूँ या नहीं रोकता हूँ? दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल बिकॉज आई हैव सीन इन द सिटीज। क्या हम वहां गाड़ी रोकते हैं? क्या उस गाड़ी रोकने का कोई फायदा है या नहीं है? हम उस पे पड़ जाते हैं। हाँ, जब हमें मालूम है दिन में पुलिस वहां पे है, हमारा चालान कट सकता है, तो हम रुक जाते हैं। करेक्ट। बट एक्चुअल आपका जो इंटरनल ट्रेट है, कैरेक्टर है, वो यहाँ चेक हो रहा है। True. शायद आप आगे बढ़े, आपका एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा वो किसी को नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, बट अगर आपने उस चीज को फॉलो किया, दैट मीन्स आप वो सही चीज कर रहे हैं जो सोसाइटी में करना चाहिए। करेक्ट। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। Courage of conviction. How true. Courage of conviction is taught to you. Yes. So if you see that when I take a decision and is it beneficial for me or is it beneficial for the mass or the people whom I am commanding? So आप अपने आप को नहीं देखते वहां पर, करेक्ट, उनको देखते हैं। तो ये एक क्वालिटी है। तो इस तरह करके ये चीजें हैं जो एक्चुअली आपको पैन आउट होती हैं। करेक्ट, करेक्ट। बिकॉज आपने बोला करेज, राइट? सो करेज इज एब्सेंस ऑफ फियर, इज हाउ वी अंडरस्टैंड इन द डिक्शनरी वर्ड कि करेज का मतलब ये है। बट इज इट एक्चुअली द एब्सेंस ऑफ फियर और इज इट गोइंग अहेड एंड डूइंग दैट थिंग इन स्पाइट ऑफ द फियर दैट यू हैव? उसको आप कैसे पैसिफाई करके आप जाके अपना एक्शन लेते हैं आगे? हाउ वुड यू डिफाइन करेज एज द लीडर ऑफ the Indian Army? Courage is the absence of fear. Okay, dictionary wise ठीक है मैम, but then I'll give you by my experience. Please. Now I'll talk about physical courage. पहले तो मैं उसकी बात करूँगा। Correct. मैं मणिपुर में था पोस्टेड, एंड हमारी जो COB थी, कंपनी ऑपरेटिंग बेस, जहाँ से हम ऑपरेट करते हैं, COB से निकल करके हमें एक बड़ा गांव था। सो मैं अपनी COB से निकलता था, मैं मतलब हमारी टीम पूरी, राइट, हम COB से निकलते थे और हमें उस गांव में जाकर के कुछ ऑपरेशन करना है, मे बी कैसो करना है, मे बी कुछ करना है वहाँ पे एक ऑपरेशन, कि हम अपने COB से निकलते थे सो दैट हम लोगों को तो डॉज करें और वो जो उनके कुत्ते होते हैं उनको भी डॉज करें, दैट इज द मेन रीजन। अब आप निकले, अपने पिछले गेट से निकले और आप फिर देयर इज अ रोड आल्सो बिकॉज इट्स अ विलेज, सो देयर इज अ प्रॉपर रोड, ब्लैक टार्मैक रोड इज देयर, बट आप उसको नहीं ले सकते, बट आप वो रोड नहीं लेंगे, आप क्रॉस कंट्री जाएंगे। करेक्ट। ओके, जिस रास्ते हम जाते थे हमेशा, उसमें एक खास बात थी, अंधेरा है, मून नहीं है और गांव है, कोई लाइट नहीं चल रहा है, बिल्कुल अंधेरा, लेकिन आप अपनी टॉर्च नहीं जला सकते, आप अपने पैरों का शोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि जंगल है, आवाज हो सकती है। तो आपने जंगल के रास्ते होते होते और लगभग आपको 20 मिनट्स वॉक करना है जंगल में, एंड देन यू आर इन द विलेज। ओके, बट वो 20 मिनट बिकम्स 40 मिनट्स, बिकॉज आप जिस पगडंडी पे चल रहे हैं, करेक्ट, आपको पता है कि यही इकलौती पगडंडी है उस गांव को पहुंचने के लिए, और मिलिटेंट को ही पता है कि यही इकलौती पगडंडी है जिसपे से फौज आएगी। करेक्ट। सो एक वो डर है कि रात के 2:30 बजे 1:30 बजे, और जिस पगडंडी पे आप चल के जा रहे हैं, एक तरफ पहाड़ है, रिज है, दूसरी तरफ बिल्कुल खाई है। करेक्ट। तो अंधेरे में आपको फियर ऑफ द अननोन, कोई हो सकता है बैठा हो, एंड आपके लिए बैठा हो कोई एम्बुश लगा के, एंड आप चल रहे हैं तो प्रोब करते हुए चल रहे हैं, सो दैट आवाज ना हो, कोई गिरे ना, फूक फूक के चलना पड़ता है, कोई गिरे ना। करेक्ट। हाँ, तो जब आप वो जाते हैं तो आपको मालूम है कि कुछ भी हो सकता है आपके साथ, करेक्ट, लेकिन आपको करना है, बिकॉज दैट इज योर जॉब। सो दैट इज करेज, बिकॉज दैट वो मुझे याद है, आई रिमेम्बर दो दैट इंसिडेंट्स। लिव्ड करेज एक्चुअली, तभी आप शायद इतने कॉन्फिडेंस के साथ हमें करेज का मीनिंग समझा पा रहे हैं, बिकॉज हमारे करेज लोगों के लिए नॉर्मली इट्स लाइक अरे करेजियस, बी करेजियस, बोला आसान है बोलना, टू बी करेजियस, एंड व्हाइल यू आर हैविंग द फियर्स इन योर माइंड, बट उस फियर को आप कैसे कन्वर्ट करते हैं इन योर ओन एडवांटेज, कि अपनी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए, अपने जो आपकी टीम है पूरी उसका ध्यान रखते हुए कि कोई किसी का कुछ डैमेज ना हो, कुछ ना हो, मूविंग अलोंग विद दैट इज अ ट्रू करेज। सो यू मूव्ड इनटू योर पेरेंट यूनिट, वाज इट ऑलवेज योर फर्स्ट चॉइस 5GR, या फिर
क्या था आपका व्हेन यू पास्ड आउट टू बिकम एन ऑफिसर? ये चॉइस वैसे तो हमें अपने पासिंग आउट से 2 हफ्ते पहले करनी होती हाँ, है, correct. चॉइस ऑफ आर्म्स होता है। राइट. बट देन ये चॉइस मैंने एनडीए में बना लिया था। अच्छा, फ्रॉम एनडीए यू वर हाँ. श्योर कि आपको जीआर में जाना है? From NDA, I was aware that And I 5GR. have to go into GR, and that is 5GR. Wow. Because there is always army is still such an organization where you have ideals to follow. Absolutely. You have the leaders Absolutely. who become your motivating factors. Correct. And I should say my leader that time was one of my drill ustad. Okay. He was a JCO. Okay. JCO instructor. And वो ड्रिल उस्ताद थे मेरे। एंड उनको मैंने देखा कि एक एक्चुअल फौजी या एक सोल्जर क्या होता है और कैसा होता है। वंडरफुल। सोल्जर एज वी नो इज, मैंने एक आदेश दिया और वो आदेश का पालन होगा। हो गया। चाहे उसके रास्ते में कुछ भी आए, बट वो आदेश का पालन होगा। राइट। एंड दैट वाज दैट उस्ताद। अच्छा। अब अगर उसको बताया कि आज शाम को ड्रिल होगा और सारे कैडेट्स आएंगे, तो वो उसको फॉलो करा के रहेगा नो मैटर व्हाट। हाँ, उसमें हम लोग कुछ थे जो ड्रिल में अच्छे थे। प्रोबेबली आई वाज फ्रॉम सैनिक स्कूल, तो मेरा ड्रिल अच्छा था। हाँ, एनसीसी किया हुआ फर्क पड़ता है उससे। तो अच्छा था, मैं पास भी हो गया बिकॉज देयर इज अ टेस्ट, डीएसटी टेस्ट इज देयर। वो मैं पास हो गया। लेकिन नहीं, उसको आदेश मिला है कि सब करेंगे। हाँ। अब उसने उसका पालन किया है, ये करेंगे तो सारे। एंड देन आई फाउंड हिम द वैल्यूज व्हिच शुड बी देयर इन अ सोल्जर। राइट। सो आई मेड अप माई माइंड। मतलब आपके आसपास देवर, क्या कहते हैं उसको ना, वो गॉड वाज गिविंग यू हिंट्स मे बी। यस। सो मैंने उनको देखा, द सिंसियरिटी विद व्हिच ही डिड अ वर्क। राइट। कि नहीं साहब, ये ऐसे नहीं, करेक्ट, ये ऐसे ही होगा। तो लोग बोलते थे ये मतलब कैसा है, बट ठीक है। बट दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड व्हेन यू आर इन द बैटलफील्ड। दैट क्वालिटी इज रिक्वायर्ड हियर। अगर आपके हायरार्की ने स्टार्ट फ्रॉम प्लेटून कमांडर, कंपनी कमांडर, सीओ, अगर उन्होंने बोला है कि इस काम को ऐसे ही करना है, तो वैसे ही होगा, तो वैसे ही होना है। बिकॉज उनके दिमाग में कुछ था, इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान, वैसे ही होगा। तो शायद इसलिए आई थिंक आर्मी में कमांड का इतना महत्व दिया जाता है। अ कमांडर्स वर्ड इज द लास्ट वर्ड, whether it's in the battlefield or whether it's in the peace time. If the commandant, or for that matter the commander, has given an order, it has to be followed to the T. So what is the importance of punishments starting from the training onwards to being a soldier? ये punishments क्यों दी जाती हैं और क्या importance है उसकी? वैसे अगर हम बात करें कि किसी एक छोटी गलती पे पनिशमेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कई एक बार आपको लगेगा, जैसे आपने बताया कि सिविल में लोग सोचेंगे कि ये मतलब ये पनिशमेंट बहुत ज्यादा है, करेक्ट, या इतनी बड़ी पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए थी। ट्रू, दैट इज ट्रू, बिकॉज वी आर फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, वी आर फ्रॉम दिस सोसाइटी, वी आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ये बात बिल्कुल सही है। बट देन फौज में उसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आज तो वो गलती छोटी है, वो गलती बहुत छोटी है, तो आपको पनिशमेंट देके आपको उसको सुधार दिया गया। करेक्ट। और कैसे मैं बताऊंगा, फायरिंग करके हम आते हैं, फायरिंग करके आने के बाद हथियार को खाली किया जाता है, खाली करके कार्रवाई की जाती है ताकि उसमें कोई चैम्बर में कोई राउंड नहीं है, और उसके बाद हथियार सफाई के लिए जाता है। करेक्ट। ओके, अगर यही अगर हमने सही से नहीं किया, उसमें बताया है कि जब आप खाली करके कार्रवाई कर रहे हैं तो आपका बैरल हमेशा आसमान की तरफ होगा, फिर खाली करके कार्रवाई की जाएगी, फिर ट्रिगर दबाया जाएगा, ये ड्रिल लोगों को याद हो जाता है। करेक्ट। तो उसमें अगर गलती से कोई राउंड है तो वो हवा में फायर होगा। अगर उस जगह पे किसी ने गलती कर दी, और होती है ट्रेनिंग में गलती होती है, ऐसी गलतियां हुई भी बिल्कुल। करेक्ट। हाँ। आप रात में हैं, ऑपरेशन करके आ रहे हैं, आपको नहीं याद कितने राउंड फायर हुए, कितने नहीं हुए, तो हो जाता है। बट देन अगर आपकी ट्रेनिंग आपने सही ली है कि मैं खाली कर ऐसे ही करूंगा, तो आप वापस आकर के अपने सीओबी में वैसे ही खाली कर करेंगे। Absolutely. तो वो गलती आपको याद रहेगी। उससे क्या होगा, आप अगर यहाँ पर करेंगे, अगर यहाँ पर आपने गलत तरीके से किया तो किसी की जान जा सकती है। ट्रेनिंग में तो वो बहुत छोटी सी पॉइंट था, बट यहाँ आके वो बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है। It can take someone's life. बिल्कुल। Absolutely. तो इसलिए this is the importance of punishment. So punishment actually is not a punishment, it is a way of training. ये ट्रेनिंग का ही हिस्सा है, ट्रेनिंग का हिस्सा है। ओके स्वतंत्र, नाउ लेट्स गेट बैक टू व्हाट आई स्टार्टेड आपके इंट्रोडक्शन के टाइम पे, that you've been conferred upon with the mention in dispatch. It's awarded to the people who have given their meritorious service.
बट आई थिंक बहुत कम हमारे ऑडियंस होगी जिनको इसके बारे में पूरा ज्ञान होगा, यू नो. सो आई वुड लाइक यू टू टेल अस अ लिटिल अबाउट द मेंशन इन डिस्पैच अवार्ड पर से एंड व्हाई इज इट कॉन्फर्ड, एंड आप किस ऑपरेशन में आप इन्वॉल्व थे जिसके कारण आपको भी ये कॉन्फर किया गया, आप पे कॉन्फर किया गया. सो प्लीज टेल अस अ लिटिल बिट मोर अबाउट दैट. मैं आपको यहाँ पे मेंशन इन डिस्पैचेस के बारे में बताऊंगा. Yes. As the English word suggests, mention in dispatch. So this award, this gallantry award, like any other award, people are aware about the wartime awards, that is Paramveer Chakra, Mahavir Chakra, and Veer Yes. Chakra, and The peacetime awards. peacetime award, that is Ashok Chakra, Kirti Chakra, and Shaurya Chakra. Yes. And other than the Chakra series, there is Sena Medal Right. and mention in dispatch. And even the commendation cards are given to in gallantry acts. Okay. So what is the mention dispatch? That your name was mentioned in the dispatch. That is the official record. Okay. So the chief of the army staff or whosoever the highest commander. So it is always the chief of the army staff in our case. The chief of the army staff has mentioned your name in a dispatch in which you are found doing a act meritorious enough, gallant enough to be mentioned in the dispatch. So that's how the name comes, mentioned in dispatch. Right. It started in 1947 and it continues till date. Wonderful. So this is one of the gallantry award which comes below the Sena Medal and which is above the Chief of Army Staff commendation cards. Okay. So that is the mentioned dispatch. So that's for the information of our audience. Okay. So आप किस operation में involved थे स्वतंत्र, and please tell us a little bit more about that action that happened. तो please जरा बताइए हमें. मैं अपनी पेरेंट यूनिट 25 गोरखा राइफल्स में अराउंड 5.5 years की सर्विस करके फिर मेरी पहली पोस्टिंग आई. हर ऑफिसर की पोस्टिंग कहीं ना कहीं आती है, कैट एस्टेब्लिशमेंट, स्टाफ असाइनमेंट्स, असम राइफल्स, राष्ट्रीय राइफल्स, यहाँ पर पोस्टिंग आती है. सो मेरी पहली पोस्टिंग जो बटालियन से बाहर आई थी वो थी असम राइफल्स. एंड मैंने ज्वाइन किया जनवरी में आफ्टर माय प्री इंडक्शन ट्रेनिंग. प्री इंडक्शन ट्रेनिंग करने के बाद 13 असम राइफल ज्वाइन किया. सो टिल दैट टाइम आई वाज द कैप्टन. एंड इन माय यूनिट आई वाज डूइंग द घातक प्लटून कमांडर. सो वहां से मैं 13 AR जाता हूँ एंड 13 AR CO ऑलरेडी नोज दैट दिस ऑफिसर इज कमिंग. And he was the Ghatak platoon commander in his unit. He is an infantry officer. I was an infantry officer. And as the COs, the old man, he is aware everything about you. Obviously. Before you report there. Absolutely. So he calls me and he says कि स्वतंत्र तू Ghatak platoon commander था. And यहाँ पर initially you have to learn about the area because it's a new place for me. It's a very different zone, yes. of course. Because in that 5.5 year service, I already had 3 years of field experience. And where were you in Kashmir? I was in Mendar, Jammu Kashmir. Okay. In my parent unit. So Kashmir se Manipur is a very different, it's a complete different setup. So I had that experience, but that experience is different. The terrain is different in the northeast. So उन्होंने बोला कि you have experience, you know about the combat thing. But then you need to learn about the area. And what better than being a Ghatak platoon commander again? So you take a small team, right, and you will roam around the entire area of 13 AR. Okay. आप घूमोगे हर जगह, आप देखोगे, and in 6 months time you will be ready because the tenure there is for 2.5 years. Right. So next 2 years you will be comfortable and you will be doing what I want. I said okay sir, that's fine for me. और मैं लग गया अपने काम में. उन्होंने मुझे ब्रीफिंग दिया, 1-2 दिन में उन्होंने मुझे ब्रीफ किया, रेडी किया, एंड देन आई वाज गिवन अ स्मॉल ऑपरेटिंग बेस एंड विद अ स्मॉल टीम दैट wherever required you will be called upon for operations. Okay, so it is actually very rare that within a small time span I joined the battalion in February. I had to go on a small leave and then I'm back again in Feb. And this operation of mine happened somewhere in the month of April. अच्छा, मतलब within a very short span. Just 2-3 months. Okay. तो ऑपरेशन चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो या J&K में हो, एक चीज है जो आपके काम आएगी, वह कि आप टेरेन को कितना अच्छा जानते हो. Correct. How much you know the terrain. That's what your CO did. He made you move around the entire area. Correct. And what int you gather, what int sources you generate. Nobody will hand over the int sources. Correct. And you have to make it
on your own, because it is your confidence and your rapport which you are building with the localites there. Local people, correct. So right now, if you see on Google, and you must be seeing the news, that there's a proper rail link till Mizoram. Right. So that time in 2013-14, it was under construction. Achha. And the tunnels were being made. Okay. Because उस रास्ते में tunnel ही tunnel है. Tunnel, and it's a mix of tunnels and bridges. The great hiding points. हाँ. So tunnels were under construction, and all the engineers and the laborers were from outside. They were not from the northeast. So that became a positive thing for me. Okay. Because I can connect with them very easily. Okay. They were from this. They were from UP and Bihar. UP Bihar side. Correct. So I can connect with them very easily. Right. So I went on ground. First of all, I made it a point that I'll take my troops and I'll visit every village in my AOR, area of responsibility. Correct. मैं हर गांव में जाऊंगा, हर उस लंबरदार से मिलूंगा, और सबको मैंने अपना नंबर दिया. ये मेरा मोबाइल नंबर है, मैं इसका कंपनी कमांडर हूँ, और आप मुझे किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी समय कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे कनेक्ट करिए. एंड आई मेट ऑल the engineers who were involved, because हमारे, as I was in Assam Rifles also have a duty of internal law and order. So met them कि ये है मेरा नंबर, और मैं सबसे मिला. So the INT network actually made it very strong for yourself. Was strong in 2-3 months, and मुझे खबर आता था. अब एक्चुअली अगर मैं इस ऑपरेशन के बारे में बात करूं, yes. So सिर्फ अलग से इस ऑपरेशन के बारे में बात करने से अच्छा रहेगा कि मैं उसका, इट वाज अ पार्ट ऑफ अ बिगर ऑपरेशन. ओके. सो होता क्या है, मैं अपनी कंपनी में हूँ, रात के 10:30 बज रहे हैं, और मैं बिल्कुल तैयार हूँ. मैंने दिन का काम हो गया है, मैं अपना बैठा हूँ, बिकॉज रात में जनरली सारे ऑपरेशन होते थे. करेक्ट. आई गेट अ कॉल एट अराउंड 10:30 in the night, 22:30 in the night, okay, from the neighboring company commander. अच्छा. That सर एक फायर फाइट हो गया है. अच्छा. एंड समवेयर ही टेल्स मी अ लोकेशन. ओके. दिस इज समवेयर इन तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट. यहाँ पर एक ऑपरेशन हो गया है, एंड आई नीड योर हेल्प. एंड आई नीड योर हेल्प. ओके. सो सर आप जल्दी से आ जाओ. आई सेड ओके. सो आई जस्ट पिक्ड अप माई जिप्सी, एंड 6 of us, I mean me and another 5, we just sat in the gypsy, because बाकी पूरी QRT को मैंने बोला आप पीछे से आ जाओ, आप मेरे पीछे पीछे आते रहो, मैं पहले पहुंचता हूँ वहाँ पे अपनी टीम लेके, एक स्मॉल टीम, और मैं वो लेकर के फटाफट निकल गया. एंड ही हैड गिवन मी अप्रॉक्सीमेट लोकेशन कि यहाँ पर आना है. अब बहुत ही दबी हुई धीमी आवाज आ रही है, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी इन टू अ फायर फाइट. सो मैं वहाँ गाड़ी लिया और फटाफट वहाँ पे पहुँचा उस इलाके में. उस इलाके में पहुँचते ही बिल्कुल घना अंधेरा, जंगल, और बाई रोड पर हूँ मैं, घना अंधेरा. वहाँ पहुँचता हूँ मैं, और वहाँ पहुँच करके फिर हमने लास्ट के अराउंड 1 किलोमीटर हमने लाइट ऑफ करके गाड़ी ड्राइव किया है. बिकॉज यू नो आई डोंट नो व्हाट इज देयर, though he gave me a call. But your recce helped you since you knew the area in general, correct? But then I don't know actually what is the situation there. Ground पे क्या है, कितने मिलिटेंट्स हैं, क्या है. सो लास्ट 1 किलोमीटर हम लाइट ऑफ करते हैं, हम ड्राइव करके जाते हैं. लास्ट के उसके बाद बचे हुए 200-300 मीटर हमने गाड़ी छोड़ दी, वॉक करके जाते हैं. वहाँ पहुँचते हैं, फिर किसी तरह से उससे मिलाप होता है रेडियो पे कि जो नेबरिंग कंपनी कमांडर था कि वेयर आर यू. सो उससे बात किया, उसने कुछ जनरल, कुछ हल्का फुल्का लाइट दिखाया कि सर यहाँ पे हूँ मैं रोड पे. वहाँ मैं गया. सो व्हाट हैड हैपेंड इज देयर वाज वन सिविल ट्रक. Civil truck was standing which had blocked the road. One side, now you can imagine there is a road, and पहाड़ में रोड चल रहा है. एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ खाई है, और रोड ऐसे घूम रहा है. बीच में ट्रक खड़ा है जिसने पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है. So it's a civil truck. So मैं वॉक करके जाता हूँ, और सिविल ट्रक है. फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा. एक जिप्सी खड़ी है, उससे थोड़ी पीछे जिप्सी खड़ी है. वहाँ पर एक कंपनी कमांडर खड़ा है वहाँ पर, जिसने मुझे कॉल किया था. आई थॉट, देन आई रियलाइज्ड ओके ठीक है, situation is under control. I spoke to him, what has happened? He said कि सर उसके पीछे एक और सिविल जिप्सी खड़ी थी. जिप्सी नहीं, आई मीन एक जीप खड़ी थी, सिविल जीप, आई थिंक बोलेरो. वहाँ बोलेरो बहुत चलती हैं. तो एक बोलेरो खड़ी है. उसने बोला कि सर इसमें मिलिटेंट थे. कितने मिलिटेंट थे मुझे नहीं मालूम. फायरिंग हुआ और एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, एंड मेरे एक जवान को गोली लगी. But by the time you reached here, that Jawan, I have evacuated him to the nearest PHC so that he is looked after.
बट आई डोंट नो अभी मिलिटेंट्स कहाँ हैं, कहाँ छुपे हुए हैं. They scattered. सो आई सेड कोई बात नहीं. पहले उनको इकट्ठा किया कि ठीक है, पहले एरिया देखा, अच्छा वहाँ पे और कोई मिलिटेंट नहीं दिख रहा है. और बिकॉज मेरे आते आते इट वॉज अराउंड 10 किलोमीटर, तो हाफ एन आवर हो गए थे. तो देयर वाज नो एनी मूवमेंट ऑफ एनी मिलिटेंट. सो हमने वो पता किया और देयर आफ्टर एवरीबडी वाज टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, क्योंकि और किसी को तो चोट नहीं लगी है. नहीं, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, सबको पानी वगैरह पिलाया, अच्छा ठीक है. उसके बाद वहाँ का जो सिचुएशन है थोड़ा उसका जायजा लिया. सो देयर वर बुलेट मार्क्स ऑन दी truck, the Assam rifle truck which was standing, and there were 3-4 bullet marks on the windshield. Okay. वो दिखाया कि सर यहाँ पे भी बुलेट्स हैं, एंड बुलेट्स वर इन अ स्लैंटिंग, बिकॉज बेसिकली हुआ क्या था, एक मिलिटेंट वो फायर किया एंड देन ही जंप्ड इनटू द खाई, द अदर साइड, एंड ही फ्लेड. Okay. And the second militant, later on we came to know, ये सब जब सारा स्टोरी दोबारा रिबिल्ड करते हैं, the second militant, the first militant had fired upon my soldier, and the soldier had fired back upon him. Achha. And that militant had died on the spot. He was neutralized. I see. He was neutralized. Okay. And the soldier was injured, so he was taken to the PHC. Okay. और उन्होंने बताया कि सर ये इधर खाई की तरफ कूद गया है. मैंने कहा ठीक है, तो आप लोग चलिए. एंड इनको वापस भेज दिया. बाय द टाइम CO का भी कॉल आ गया था, एंड आई एक्सप्लेन्ड हिम द मैटर, सर ऐसा ऐसा हुआ है. सो वी थॉट वी शुड परसू हिम. Okay. Because a militant with a weapon in hand going in the jungle which leads to a village is not good for the people. So we should pursue him. Correct. But again, our teachings कि मणिपुर के जंगलों में, इनफैक्ट किसी भी जंगल में, but then actually he has nothing to lose. वो इकलौता इंसान या दो इंसान, he will fire here and there. He will fire just helter skelter, and you may lose a man, which we don't want. Definitely. We will catch him. बचेगा नहीं वो, बट देन दैट इज द मेन थिंग. होल्ड योर हॉर्सेस टिल इट्स लिटिल फर्स्ट लाइट. सो हम नीचे गए, हमें थोड़ा बहुत कुछ निशान बने हुए थे, हम नीचे गए एंड हमने देखा. फिर देन आफ्टर सम गोइंग फ्यू मीटर्स वी केम बैक. हमने कहा ठीक है, एंड देन वी कलेक्टेड एवरीबडी एंड वी वेंट बैक टू द COB कंपनी वेयर दिस ऑफिसर हैड कम फ्रॉम. एंड दैट जो सिविल ट्रक की मैंने बात बताई थी, वो एक्चुअली खराब थी, एंड ही वाज रिपेयरिंग इट. दैट्स व्हाई द रोड वाज ब्लॉक्ड. अच्छा, that's how everything happened. Okay, उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई एक तरह से. Okay. तो ये, so we went back and it was around 12 o'clock in the night. We went back. The commanding officer was already there. He was debriefed about this thing. And then he told, okay, Swatantra, while you are going back, just see. We have a few things which have just fallen down. हमारे कुछ सामान नीचे गिर गया, वो देख लेना रास्ते में. अच्छा. एंड इफ यू कैन परस्यू द मिलिटेंट. मैंने कहा बिल्कुल सर, द फर्स्ट लाइट विल बी द बेस्ट टाइम. एंड इन द नॉर्थ ईस्ट द सन राइजेस अर्ली. सो 3 o'clock वी वर आउट. मॉर्निंग 3 o'clock, अगेन दो 6 of us वी आर आउट. एंड हम वहीं जाते हैं जहाँ पर ये ऑपरेशन हुआ था. एंड वहाँ पे वी कुड सी सम ब्लड स्पॉट्स एंड ऑल. By the time police was already there, because the body of the militant had to be handed over. That thing was going on in the background. The one who was dead. Yes. And we could recover a few things. हमारे कुछ एक सामान गिर गया था, कोई मैगजीन गिर गई थी रात में, वो पता नहीं चला. Thereafter check हुआ. Okay. Now we went down that trail where that militant had escaped. Correct. We went down and we found Chinese grenades. Oh. Okay, so we knew कि ये यहीं से भागा है. We picked up that. We found his magazine, AK magazine. अच्छा. I think it was AK और M16. I'm forgetting. वो magazine एक मिला, वो भी मिला. हमने वो रिकवर किया. हम और नीचे जाने की कोशिश किया, बट उसके आगे वो ट्रेल नहीं दिख रहा था. अच्छा. So हम वापस आ गए. And we just sat in our gypsy and we started moving back towards my company from where I had come. हम वो रास्ते गए. अराउंड 500-700 मीटर के बाद अगेन हम रुके, बिकॉज वो रास्ता मुड़ के, इट वॉज एस शेप या यू शेप बेंड था. वहां पर जाकर के वो खाई या वो जंगल था, वो रोड में मिल रहा था. सो हमने वहां जाकर के फिर से गाड़ी रोकी. ओके. सो प्रोबेबली टुडे इफ आई रिमेंबर इट बैक, इट वाज इंट्यूशन और समथिंग कि कुछ तो है, मतलब आई थिंक कहाँ जाएगा वो, ही होगा वो, कहाँ जाएगा वो. करेक्ट. हाँ. सो हमने फिर से वहां गाड़ी रोकी और एक ड्राइवर को बोला तू यहीं रुक जा, गाड़ी यहाँ पर है और हम आते हैं. So again, we 4-5 of us, we just moved out,
एंड वहाँ पे सारी टीचिंग काम आ जाती है आपकी फौज की, जो भी हम पहले बात कर रहे थे कि कॉम्बैट ट्रैकिंग एंड वेयर कुड यू हैव गॉन, टेरेन की नॉलेज. एंड इट वाज बाय दैट टाइम 3:15 3:30 इन द मॉर्निंग. अभी सनराइज हुआ नहीं था. अच्छा. बट देन हल्का हल्का सुबह होना शुरू हो जाता है. तो हम सारे आगे बढ़ना शुरू हो गए. अच्छा. हम आगे बढ़ना शुरू होते हैं और अंदर हमें लगभग 100 मीटर अंदर जाने के बाद हमें कुछ पानी की आवाज आता है. फ्लोइंग रिवर, झरना टाइप का वैसा कुछ आवाज आता है. तो हमने और रुक के धीरे धीरे चलना शुरू किया. इतने में एक नदी था, शायद एक नदी बह रही थी. इतने में जो स्काउट है, जो सबसे आगे चल रहा होता है, उसने सबसे पहला इशारा किया. उसने सिग्नल किया कि कुछ है. सो जैसे ही कुछ है तो फटाफट सारे डैश डाउन हो गए, जमीन पे आ गए और देखना शुरू किया कि क्या है. देन आई वॉकड अप टू हिम कि क्या, बिकॉज वो थोड़ा आगे था. तो उसने दिखाया कि अब वहां पर कोई है, कोई हरकत हो रही है, कोई है. एंड जैसा हुलिया हमें रात में बताया था साहब ने, लगभग वैसा ही है. और इसके पास हथियार भी है. सो इतनी चीजें, सुबह के 3:30 बजे घने जंगल में एक इंसान अगर हथियार के साथ घूम रहा है, तो वो भी ऐसे इलाके में जहां आप जानते हो कि ये मिलिटेंट इन्फेस्टेड है. करेक्ट. तो कुछ तो है वहां पर. सो हम दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुए. वी वर अनअवेयर दैट ही हैज ऑलरेडी स्पॉटेड अस. आई सी. उसने हमें देख लिया था. बट ही वाज एक्टिंग एज इफ प्रोबेबली ही थॉट कि हम नहीं देखेंगे और हम निकल जाएंगे. सो या मे बी ही थॉट दैट लेट देम कम क्लोजर. हाँ, then maybe I will. It can be anything. Correct. So we were, हम दोनों बड़े आराम से आगे बढ़ रहे थे. और इतनी शांति होती है जंगल में, पत्तों की भी आवाज आती है. हाँ, आप चिड़ियों की आवाज, आप इंसेक्ट्स की आवाज आप सुन सकते हैं. एंड आई रिमेम्बर इट. वो मेरे पैर के नीचे एक छोटा सा वो लकड़ी होता है, वो टूट जाता है. छोटी लकड़ी है, पैर के नीचे वो दबती है और वो टूट जाती है. तो जैसे ही उसका टूटने का आवाज आता है, उधर से फायर होता है. He was ready. He was ready. Oh, wow. He was ready and he fires. And the moment he fires, मतलब यहाँ ये आवाज होना, उधर से उसका फायरिंग होना, और हम दोनों वापस जमीन पर तुरंत नीचे ताक लगाए बैठा था कि कब पहली आवाज आए. तो we were lucky. So lucky से I always tell my juniors and even seniors कि sir, we are those lucky soldiers who are alive and we are reaping the benefits of those soldiers who have laid down their lives. So true. So we were lucky. कि उसकी those bullets were not meant for us. हम तुरंत नीचे गिरे, हमने पोजीशन बनाया, and both of us fired. And it was fired for effect. Again, now that training of firing comes into play here. Training has an important role. You come down and you're fired and it has hit him. Wow. And that chap was hit. He was neutralized. And thereafter the team gets up. We go and actually check कि और कोई तो हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी. But then you have to be doubly sure that the one whom you are neutralizing or injuring is actually a militant. Yeah, of course. That is the most. So later on, the police was informed. Police came. We were there for half an hour to 1 hour. Police came. He checked, and the police is aware कि कौन मिलिटेंट और कौन नहीं, और पता चला वो उसी गांव का है. So probably he was going into that village for a hiding. एक बार वो गांव में पहुंच जाता, फिर नहीं मिलता. उसको स्पॉट करना. He spotted. He was a local. हाँ कि ये तो he is a militant. And then we come to know that he was the area commander of ZUF. So he was like a pretty high he was profile था वो. हाँ, SS lieutenant or captain. Because they call themselves as lieutenant captains. So वहाँ पे भी उनके ranks होते हैं. They go till SS brigadier, I suppose. अच्छा. Self-styled. Right. Self-styled lieutenant, self-styled captain. तो वो self-styled lieutenant या captain था. Right. And he was neutralized. हाँ. And this we came to know after 1 or 2 days. And then so that was the thing. That's amazing. मतलब ये सुन के भी कितना amazing लगता है कि you know how, because ये सब चीजें generally आम जनता movies में देखती है. Like Uri आई थी, that showed I think the closest कि Uri was a good movie. Uri was a good movie and it was and वो based वहीं की थी, North East का ही उन्होंने उसमें दिखाया था and it was तो hearing it first hand, you know कि exactly उसी type का कुछ मंजर आपने जो देखा and उसको experience किया and like you said
luck played a very important role. So that means luck does have. Soldier has to be its- lucky, ma'am. है ना? It does play a role in your life बिल्कुल। because नहीं पता कौन सी गोली कब आपके कान हाँ। के पास से गुजर जाएगी आपको छोड़ के. So बिल्कुल। it's every day you are living a life, but minus fear. You're living your day thinking that this day is going to complete and I'm going to be ready for the next operation ma'am. tomorrow. It's amazing to hear this story. Now, from Manipur, of course, and thanks for mentioning about the mention in dispatch. I'm sure the audience is a little more wiser today. Coming back a little to the uniform that we wear, you know, every day is a new day. आर्मी को बोला जाता है it's a way of life. लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि आर्मी is a job, कि इनका तो काम है, they are supposed to live their life. तो ऐसे लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे कि what exactly is the Indian Armed Forces? मैम, इंडियन आर्मी इज अ वे ऑफ लाइफ, हम ऐसा क्यों कहते हैं? उसका एक कारण है. वी टॉक्ड अबाउट सर्टेन क्वालिटीज विच अ लीडर शुड हैव. सो उन क्वालिटीज को हम एक्चुअली जीते हैं. Tell me a few qualities which you feel that आप रोज जीते हैं. लीडर्स ईट लास्ट, हमने एक बुक भी है इसके ऊपर, एंड दैट एक्चुअली समराइजेज अ लॉट ऑफ थिंग्स. How true? वाई लीडर्स ईट लास्ट? आप तो लीडर हो, आप तो सीनियर मोस्ट हो. आप, अगर मैं बिल्कुल वैसे टर्म्स में बात करूं, लेमैन टर्म में, तो आप तो सबसे पहले खाना खा सकते हो. बट इट इज नॉट अबाउट ओनली हैविंग फूड. Yes. इट समराइजेज अ लॉट ऑफ क्वालिटीज. सो आप गए वहां पर, आपके अंडर कमांड कुछ लोग हैं जिसकी लाइव्स आपके एक ऑर्डर पे डिपेंड करता है. करती है. True. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम. Right. Unlike any other place wherein he is also doing a job which he has been assigned, you are also doing a job which he has been assigned. Just because you are at a higher rank, you give orders and he follows it. But यहाँ पर ऐसा नहीं है. In army एक दूसरे का ध्यान देना सबसे ज़रूरी है. Correct. आप अपनी जो आपके नीचे हैं, चाहे ऑफिसर हो, जेसीओ हो, किसी भी जवान हैं, आप उनका पूरा ध्यान देते हैं. दैट इज द फर्स्ट थिंग. दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच इज टॉट टू अस. सो दैट बिकम्स वन. एंड सेकंड थिंग इज कि that's why you also have buddy pairs. buddy pairs. We always operate in buddy pairs. Right. Correct. And the adrenaline rush which अगर मैं आज कुछ मैसेज देना चाहता हूँ यंगस्टर्स को, so you find people finding new ways of adrenaline rush. Yes, shortcuts. That adrenaline rush is already there in the people in the defense forces, in the daily job which they are doing. Correct. It does not come by having a rash driving on the road. Yes. Or doing something which is not actually acceptable to the society. Yes. We don't want that. वो चाहिए नहीं, because हमारा adrenaline rush already हमें पूरा मिल रहा होता है. And each day is a new day. There Yes. is no 2 days which are the same when you're in the uniform. The kind of service that you're doing to the nation. So, like you were giving a little message to our youth, I would like you to come all out and give a message to the youngsters out there. जो आजकल I think they are lost because of the technology that has come into being, because of एक तो options इतने ज़्यादा खुल गए हैं that they are kind of lost in those options only. So, अगर आप एक message देना चाहेंगे हमारी youth को, to the kids who are now at the age and stage where they can now apply and be a part of this honorable service, तो आप उनको क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे? Why should they join the Indian Armed Forces? मैम, जैसा कि आपने बताया, यूथ के पास आज ऑप्शन बहुत हैं, राइटली सो. बट हमेशा हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम आसान की तरफ जाते हैं. करेक्ट. एंड आई लाइक टू टेल एवरीबडी हु विल बी वॉचिंग दिस पॉडकास्ट इज, आसान की तरफ जाना तो आसान है, बट जब आप मुश्किल की तरफ जाते हैं तो लोग मुश्किल की बातें करेंगे. जो मुश्किल रास्ता होता है, जो मुश्किल मंजिल होती है, उसकी बातें लोग हमेशा याद रखेंगे. सो आप कोई भी काम करिए, सारे काम नेशन बिल्डिंग की तरफ है. हर इंसान जो भी काम कर रहा है वो नेशन बिल्डिंग की तरफ है. True. लेकिन फौज में आप वो हर चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आपको एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाता है, या आपको एक कंप्लीट लाइफ जीने में मदद करता है.
जैसे कि सबसे पहले आप एक इंडिविजुअल इंसान हैं. इंडिविजुअल इंसान होने के बाद आप एक बहुत ही कम उम्र में आप एक लीडर बन जाते हैं. ट्रू. उसके बाद आपको पता चलता है कि यू हैव अ बटालियन, you have a regiment, you have a unit to look after. You're like a father to them. So at that age, you become responsible. Yes. At the age of 21, 22, you become responsible. That responsibility factor comes in. Correct. You start taking decisions. Yes. Split decisions. आप quick decisions. आप फटाफट decision ले सकते हैं. And those decisions are actually very, I mean to say, important, strong. वैसे डिसीजंस आप ले सकते हैं एट अ स्मॉल एज. देन एट द एंड, मतलब जब आप अपनी लाइफ कंप्लीट करते हैं, जितनी भी नौकरी करते हैं आप, लास्ट में आई शुड से दिस इज वन जॉब which actually gives you a lot of things, like what better than it this? gives you everything. Yes. It gives you the security. It gives you the आपकी फैमिली को जो सिक्योरिटी मिलता है, आपके बच्चों को जो सिक्योरिटी मिलता है, द एनवायरनमेंट विच यू आर स्टेइंग इन. यू मे हैव लॉट्स ऑफ मनी, बट द एनवायरनमेंट विच यू आर स्टेइंग इन, आई कैन वाउच फॉर दैट द आर्मी कैन गिव यू. फ्रॉम ए पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन गिव यू समथिंग. द एडवेंचर विच आर्मी टॉक्स अबाउट, द एडवेंचर स्पिरिट is alive in this organization as a part of its daily job. Right. बाकी आप क्या होता है, आप छुट्टी का प्लान करते हैं कि मैं कहीं बाहर जाऊंगा और एक ये एक्टिविटी करूंगा, बंजी जंपिंग करूंगा, बट इन आर्मी इट्स अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ. एंड आई बीइंग अ आर्मी ऑफिसर, आई हैव थ्रू द आर्मी आई हैव ऑलरेडी डन एडवेंचर कोर्सेस. आपने तो हॉर्स से भी अपनी ट्रेनिंग की हुई है, माउंटेन वॉरफेयर किया, उसके बाद पैराग्लाइडिंग किया, वाइट वाटर राफ्टिंग किया, स्कूबा डाइविंग किया, पैरामोटर किया. सो दीज थिंग्स एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता, और कितने अमाउंट खर्च करके दुनिया जाती है ये चीजें करने के लिए जो आप एज अ डेली लाइफ जीते हैं. बिल्कुल. वाओ. बाकी आप बाहर जब कुछ भी आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपका मेन मुद्दा होता है कि मुझे पैसे कितने मिलेंगे. राइट. सो आप उसको भूल जाइए, बिकॉज आफ्टर सर्टेन एज, आफ्टर 10-15 years in a service, then you start looking for inner peace. Yes. So that is already there in the army. Absolutely. आप काम कर रहे हैं, आप काम करने के बाद अगर आपको रात में अच्छी नींद आ रही है, so that is what army gives you. Correct. आपने काम किया, उसके बाद आप आराम से अगर सो रहे हैं, so that is given by the army. That is a real life that you are living. Yes. जो हर इंसान को नहीं मिलती इस तरह की जिंदगी. हम कुछ एक समय बाद देखने लगते हैं कि मैं फिजिकली फिट कैसे रहूं. Correct. Because physical fitness is your health is the one thing which you will carry till your last breath. True. बाकी सब धीरे धीरे करके आपका साथ छोड़ेंगे. बट वो हेल्थ आपकी जो है वो आपको बिल्कुल लास्ट ब्रेथ तक रहेगी. True. फिर हम तरीके ढूंढते हैं कैसे फिट रहें. I know. Army will keep you fit. And even when and you it becomes leave a way army, of life. Yeah, when you leave army is still inside of you. You may have left the uniform. आपने यूनिफॉर्म को हैंग कर दिया, लेकिन आप फिर भी फौजी, मरते दम तक आप फौजी ही रहेंगे. So आपका जैसे आप जी रहे हैं अपनी लाइफ को, वो कहीं ना कहीं आपकी इंस्पायर्ड है in the life that you have lived while being in the service. So it's so true and very beautifully brought out by you. And all that you have shared with us today, it's like, I think for the youth who's listening to this podcast today, I think it's very important for them to know कि Indian Army का जो essence है वो क्या है. आपने आज हमें वो essence बताया है Indian Army का, and I really want to thank you for this. And thank you so much once again, Colonel Swatantra Kashyap, for being a part of this podcast. And I really look forward कभी ऐसे ही आपसे फिर मुलाकात हो, and we happen to talk something more beyond what we discussed today. Thank you so much for being a part of this podcast. Thank you, ma'am. Thank you very much for giving me this Thank opportunity. You so much. Thank you so much. So after hearing this, I'm sure आधे से ज़्यादा लोग आप आज पक्का इंस्पायर हो चुके होंगे to go and fill that form. So all those youngsters out there, I would like to appeal to all of you. You must come out and come and join the Indian Armed Forces. Armed Forces are waiting for you, and you are the future of tomorrow. So come and join the Armed Forces.
Until the next time, I will see you once again in my next podcast with somebody as amazing as Colonel Swatantra. Till then, goodbye and Jai Hind.